crisis is over. It definitely has raised several questions on safety, security and concerns. We're now getting some details about what transpired. The accused had taken 17 children and 2 adults hostage. We're given to understand that the police tried negotiating at first. When that did not work out, police officials forcefully entered the studio. Let's go across to Arunil. He's getting us more details now on what transpired between when the police first received a call to when the operation was carried out. Yes, Arunil. Well, Swati, the latest information that we are gathering from the Mumbai police is that all the 17 children who were spoken with by the Mumbai police obviously trying to find out what exactly transpired, what were the sequence of events. Now, these 17 children are being handed over to their respective parents, their guardians in this case. Also, the accused, Rohit Arya, he is been thoroughly interrogated. He's been sent for a medical as well to find out whether he was intoxicated, whether he was under the influence of any kind of a narcotic substance, whether under the influence of alcohol. Also, the cops are trying to find out whether he was mentally stable or no, because taking such kind of an extreme measure. The Mumbai police have also revealed their operation sequences, well, that how at 1:45 p.m. today they received a call related to a hostage scenario in Powai area of Mumbai, wherein 17 of the children were taken hostages, and immediately they acted on it. They entered the studio from the washroom area of this studio. They tried to have a negotiation with the accused in this case, Rohit Arya, who had already released a video basically saying that he wanted to speak to certain individuals about some things, and it was very serious according to him, and if he was not allowed to do that, then he is going to set the entire studio on fire. Right. Arunil, any details on was he armed? Because we're given to understand, according to reports, that some chemicals and an air gun were found at the scene, at the venue. Arunil, if you can hear me, are you getting any information, any inputs about whether the accused, who has now been placed under arrest, was armed? Well, we understand that the cops have recovered certain chemicals from the studio location, basically the venue from where this incident took place, where the children were. All right, Arunil, I'm interrupting you because we are now joined by Atul, who is actually present at the scene where the kids were held hostage. Atul, पहले तो उस जगह की तस्वीर दिखाइए और साथ साथ ये जानकारी भी दीजिए कि कैसे ये व्यक्ति वहां पहुंचा, उसे एक्सेस उस जगह का कैसे मिला, कैसे उसने इन बच्चों को हॉस्टेज बनाया। जी देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें वहां की दिखा रहा हूं क्योंकि हलचल यहां पर काफी ज्यादा है। क्यूआरटी टीम के कमांडोज आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद हैं। अभी भी इस जगह को सर्च ऑफ किया जा रहा है। देखिए, क्यूआरटी की जो टीम है कमांडो की, वो इस समय अंदर गई हुई है। अभी भी जो आला अधिकारी हैं वो स्टिल अंदर अभी हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी भी मेटल डिटेक्शन के अलावा जो फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पूरी जगह को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हेवी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। जो लोग इस बिल्डिंग में थे, वो जो है जो ऑफिसेज यहाँ पे इस बिल्डिंग में थी, उसे खाली कराया गया है। आप देख सकते हैं स्कूल बस के अंदर लोगों को निकाल के ले जाया जा रहा है। इस तरीके की भी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस ने जो फोर्सफुल एंट्री की है, वो जो है जो स्टूडियो का पीछे की तरफ का बैक रास्ता था, एंट्री थी, उसको तोड़कर बाथरूम के जरिए एंट्री किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्लान तरीके से आप कह सकते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में जो आरोपी है वो बीते 10 दिनों से, अब तक जो जानकारी आ रही है, लास्ट 10 डेज से वो यहाँ पर किसी वेब सीरीज के लिए जो है कास्टिंग करनी
है ये बता के बच्चों को यहाँ पर बुला रहा था और उनके जो है वो सारे जो है शूट्स किया करता था। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन अचानक से आज दोपहर करीबन 1:30 से 1:45 बजे यानी 1:30-1:45 के बीच में मुंबई पुलिस को कुछ लोगों ने इस बात की इत्तला दी है कि कुछ हरकत यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस ग्लास की जो बिल्डिंग है आरए स्टूडियो जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कुछ अनयूजुअल दिखाई दे रहा है। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई तो तुरंत, चूंकि पवई पुलिस स्टेशन पास में ही है, वो इमीडिएटली यहाँ पर पहुंचे हैं और जो शख्स था उस तक जो है पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि उसका जो कन्फेशन वाला वीडियो है जिसमें वो इस बात को खुद कमिट कर रहा है कि उसने ये पूरे प्लान तरीके से किया है, क्योंकि वो किसी तरीके का कुछ मैसेज देना चाहता है कि किन ऑफिसर से या कुछ सीनियर लोगों से बात करना चाहता है। ये बातें जब सामने आई हैं तो उसके बाद से उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला गया। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद उससे जो है संपर्क साधा गया और लगातार एक तरफ जहां सीनियर ऑफिसर्स नेगोशिएशन करके उसको एंगेज किए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ क्यूआरटी कमांडो की जो टीम थी, मुंबई पुलिस की जो टीम थी, वो इस स्टूडियो में घुसने के या इस बिल्डिंग में घुसने के रास्ते को ढूंढ रही थी। और गनीमत ये थी कि जो बातचीत था, उस बातचीत के दौरान जब बातचीत नहीं बन पा रही थी, वो एरोगेंस दिखा रहा था, वो रिजिडनेस दिखा रहा था अपनी बात को लेकर, तब मुंबई पुलिस को थोड़ा सा फोर्सफुल जो है एंट्री करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने बाथरूम का जो रास्ता है आरए स्टूडियो का, वहां से एंट्री की है और उसके बाद ओवर पावर करके उस शख्स को मजबूर किया, जिसके बाद उसने सरेंडर किया है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए ले जाया गया है। जितने 17 बच्चे थे यहाँ पर, उन सभी को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। इनके अलावा एक सीनियर सिटीजन भी था और एक कॉमन सिविलियन भी था, यानी टोटल कुल 19 लोग थे जो उस वक्त इस होस्टेज जो घटना हुई है मुंबई में, वहां पर 19 लोग थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। अब आगे मामले की जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजान शख्स जो इतने दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज की कास्टिंग के नाम पर जो सारी चीजें वो कर रहा था, उसके बारे में न स्टूडियो के लोगों को पता था, न बाकी जो बिल्डिंग के लोग थे या सिक्योरिटी थी उन्हें पता थी। लेकिन चूंकि अब ये बताया जा रहा है कि जो बंदा है, जो आरोपी है, वो मेंटली स्टेबल नहीं था, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो हर एंगल से मुंबई पुलिस फिलहाल बिल्कुल, इसमें एक एंगल देखिए ये भी है, क्योंकि अतुल आप बता रहे हैं कि वो कई दिनों से यहाँ पर ऑडिशंस करवा रहा था, यानी कि वो इस इलाके को जानता था, इस बिल्डिंग को भी समझता था, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वो जानता था। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह का कास्टिंग को लेकर के कोई ऑडिशन होता है तो उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं अतुल। कोई एक व्यक्ति इस तरह से ऑडिशन नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें दूसरे एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो इन बच्चों के पेरेंट्स के साथ संपर्क में होते हैं। वीडियो में भी आरोपी कह रहा है कि मेरे साथ और भी लोग हैं, तो उस एंगल की भी जांच मुंबई पुलिस को करनी होगी कि ये लोग कौन है, क्या वो क्राइम में इन्वॉल्व थे या सिर्फ कास्टिंग में उनका रोल था। जी, इसमें अभी ये भी एक चीज देखने गौर करने वाली बात है कि जो मुंबई पुलिस है वो अभी शख्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। तो अभी जानकारी ये मिली है कि रोहित आर्या नाम का ये जो शख्स है वो पुणे का रहने वाला है और वो एक स्कूल में काम किया करता था वहां के पुणे के। अभी कौन सा वो स्कूल था, सरकारी स्कूल था कि प्राइवेट स्कूल था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग के भी हम आपको एंट्रेंस दिखा रहे हैं। ये वो एंट्रेंस है जहां पर विजिटर्स को जो है एंट्री करने के लिए पहले सिक्योरिटी से अप्रूवल लेना होता था, उसके बाद ही अंदर एंट्री होती थी। और इसी जगह से वो अपने जो साथ में ऑडिशन के नाम पर बच्चे यहाँ पर आए थे या जो लोग यहाँ पर आए थे, इसी जगह से उन्होंने एंट्री की थी और इसी जगह से पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने एंट्री की है। फिलहाल आप अंदर की तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। हेवी पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है और ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो कह रहा है, अभी जो सोर्सेस ये बता रहे हैं कि उसने जो बच्चों को डिटेन किया था या हम कहें होस्टेज किया हुआ था, उसे कोई उसने काम किया था, उसका उसे पैसा नहीं मिला था, वो अपना बकाया पैसा लेना चाह रहा था। उसके लिए उसने कई बार प्रोटेस्ट भी किया, अपनी बातों को सामने रखा, मैनेजमेंट के सामने रखा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाया है। और ये भी सोर्सेस कह रहे हैं, हालांकि मुंबई पुलिस को इसको कंफर्मेशन अभी करना बाकी है कि उसके जो बकाया रकम थी वो करोड़ों में थी, इस तरीके से उसका कहना है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसा कौन सा सरकारी जॉब वो कर रहा था या कौन सा ऐसा जॉब वो शख्स कर रहा था पुणे में जिसका बकाया रकम ही 2 करोड़ या करोड़ों में है। इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, तो मुंबई पुलिस फिलहाल यही वजह है कि पूरी तरीके से
ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए भी सारे पहलू को जांच करने के बाद और ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर ये व्यक्ति पुणे का है और पुणे के किसी स्कूल में काम कर रहा था, तो मुंबई आकर पवई जैसे इलाके में आकर ये करने के पीछे की वजह क्या थी, उस पर भी मुंबई पुलिस को जाहिर तौर पर जांच करनी होगी। जी, ये बात भी सही है कि ये जो शख्स है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि एक अगर ऑडिशन वाली भी बात मान ली जाए कि वो यहाँ पे इतने दिनों से ऑडिशन कर रहा था, 10 दिन से वो यहाँ पर बच्चों को बुला रहा था, दोपहर में लंच के समय में ही ऑडिशन के लिए उसने एक टाइमिंग देकर यहाँ पर रखी हुई थी, तो वो बीते 10 दिनों से जो ऑडिशन यहाँ पे ले रहा था, तो और भी कुछ लोग उसके साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब ऑडिशन या वेब सीरीज की शूटिंग के जैसी कोई बात होती है तो एक अकेला इंसान नहीं करता है, उसमें कम से कम उसके साथ कोई टीममेट होता है, 2 से 3 लोग होते हैं, तब जाके उस कास्टिंग की पूरी प्रोसेस और लोग कौन कौन थे, तो किस तरह का पैसा बकाया था, किससे बकाया था, वजह क्या थी? Of course, all these points would come up during the interrogation and in the course of the investigation as well. Atul, thank you very much for getting us the live reports. Atul is reporting live from the location where the kids, 17 kids including 2 adults, were taken hostage by the accused, who has now been arrested.